धारचूला की ओर નીચે જવાનું છે આ મંદિર પરથી લીધેલું છે દુર્ગા માતાનું મંદિર છે ત્રિદેવ ત્યાંથી અસીન લીધો છે પિઠોરાગઢ દુર્ગા માતાનું મંદિર છે આ ધારચુલા જતા રસ્તામાં રોડનું કામ ચાલી રહ્યું છે એટલે બધી ગાડીઓ ઊભી રાખી છે એટલે આ ફોટોગ્રાફીનો અમને મોકો મળી ગયો છે ભારત સરકાર મોદી સરકાર બહુ સરસ કામ કરી રહ્યું છે આ રોડનું કામ બહુ સરસ ચાલી રહ્યું છે ધારચુલા જતા પિઠોરાગઢથી ધારચુલા રસ્તાનું કામ ચાલી રહ્યું છે રસ્તા બહુ સરસ બની રહ્યા છે અને આ સામે દેખાય છે નેપાળનું ધારચુલા છે ધારચુલા કાલિન નદી અને આ ધારચુલા ઇન્ડિયામાં આવેલું છે કુમાઉ મંડળનું ગેસ્ટ હાઉસ છે धारचूला इसमें काली गंगा नदी है और सामने धारचूला नेपाल 165 किलोमीटर છે धारचूला मार्केट ધારચુલાનું માર્કેટ નેપાલ અહીંયા આગળ ધારચુલા કે આપણે ત્યાં ધારચુલા नेपाली सिंगर આદિ શક્તિ મહાકાલી પ્રવેશ દ્વાર ઉપર છે કાલિકા માતાનું મંદિર છે ઉપર અત્યારે અમે નેપાળની બોર્ડરમાં છે ધારચુલામાં રહ્યો છે बारिश हो रही है ધારચુલા સામે દેખાય છે ધારચુલા છે નેપાળમાં આવેલું વચ્ચે જે નદી વહી રહી છે એનું નામ કાલિન નદી છે અમે જ્યાં રોકાયા છે ત્યાં કુમાઉ મંડળનું આ એક ગેસ્ટ હાઉસ છે कूमाऊ मंडल गेस्ट हाउस से सेल लिया है जिसमें काली नदी है એક બીજી છે जागेश्वर धाम સુંદરનો આકાર તમે જો સ્પષ્ટ જો હશે संत का आकार है गणपति का આ વૃક્ષ છે બહુ વર્ષો જૂનું મંદિર છે આનું વૃક્ષ છે पुराना मंदिर है ये અતિ વિશાળ ઊંચું છે આ વૃક્ષની ખાસિયત એવી છે કે 100 વર્ષ સુધી ઊભું રહે 100 વર્ષ સુધી નીચે પડેલું રહે અને બીજા 100 વર્ષ પછી સરે આની ઉંમર 300 વર્ષ इसकी उम्र 300 साल की होती है થાય છે દરરોજ જાગેશ્વર ધામ અલમોરાથી 5-10 કિલોમીટર દૂર છે તો પાંડવોના સમયના આ મંદિરો છે 5000 વર્ષ 5000 साल આ पुराना મેન मंदिर મંદિર है છે જ્યોતિર્લિંગ છે ज्योतिर्लिंग है નાગેશ્વર અહીંયા નાના મોટા 125 મંદિરો છે 125 આ मंदिर है परिसर है। એરિયામાં
અહીં હવન કુંડ કાયમ થતો જ રહે છે. हवन कुंड है ये, हमेशा चलता रहता है. ના મૃત્યુંજય મંદિર मृत्युंजय मंदिर है शिव जी का. જય ગણપતિ બાપા. 125 હનુમાનદા દક્ષિણમુખી છે. દક્ષિણમુખી હનુમાનજી. શંકર ભગવાનના છે લિંગ જ છે. કાળના બધા મંદિરો છે 5000 વર્ષ જૂના. 5000 હવે આ બાંધકામ જોશો તો ખ્યાલ આવી જશે કે કેટલું પૌરાણિક છે. नागेश्वर धाम. 125 મંદિરોની અહીંયા સ્થાપના થઈ ગઈ છે. मेन मंदिर है. આ મેન મંદિર છે. જ્યોતિર્લિંગ છે જાગેશ્વર નાગેશમ દારુકા વને. Evening time, sunsetting. અલ્મોડા. Beautiful song. Evening times. Morning time. બ્યુટીફુલ મોર્નિંગ. पहाड़ पर बसा हुआ है अल्मोड़ा. દખન. સામે એસટી વર્કશોપ છે. એસિસ્ટાન ઉત્તરાખંડ ટુરિઝમનું સરસ લોકેશન છે. આ મિડલથી અમે ફોટોગ્રાફી કરીને ઉપર જો હાઈટ પર મકાનો છે અને ડાઉન છે આ નીચે. ખરેખર એકવાર મુલાકાત લેવા જેવી છે શહેરની અલ્મોડા. नग्न प्रसंग चल रहा है दूर पहाड़ी इलाके में. कसार देवी अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट में है. અલ્મોડા કસાર દેવી. અચ્છા અલ્મોડા कसार देवी टेम्पल ખૂબ હાઈટ પર છે આ મંદિર. काफी हाइट पर है. આ સામે શંકર ભગવાનનું મંદિર છે. शंकर भगवान का मंदिर है ऊपर. કસાર દેવી. अच्छा नीचे गर्मी जब यहाँ कसार देवी. स्वामी विवेकानंद ने यहाँ पर तप किया था. ऊपर जो स्वामी शिव जी का मंदिर है अंदर गुफा है. આ શિવજીનું
પૌરાણિક મંદિર છે કસાર દેવીની ઉપર પહાડ પર છે. માતાજી અહીંયા શુભ અને વિષમ નાશ शुभ કરેલો विषम का यह नाश किया था કાઠિયાની રૂપ ધારણ कात्यायनी કરીને रूप धारण करके. એનું નામ મોટું છે કસાર દેવી. કાઠિયાની રૂપ ધારણ કરેલું માતાએ. शिव जी का मंदिर है यहाँ. ઉપરના પહાડ પર નીચે બહુ હાઈટ પર છે. અલમોરા નીચે વસેલું છે. એ માનતા મૂકીને તિથિ गोलू મૂકવાની હોય देवता. છે. માનતા પૂરી થાય ये આ भी પ્રમાણે अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट में ही है. મૂકવાની હોય છે બધી. ये सब घंट बेल जो दिख रहे हैं, માનતા પૂરી થઈ लोगों की જાય. जो मान्यता पूरी होती है तो वो गंध बांधते हैं यहाँ पर. तो मान्यता वो यहाँ चिट्ठी में लिख के रखते हैं मंदिर में. મૂકે છે અને આ કાલ ભૈરવનું એક ગ્રુપ છે જે અલમોરામાં આવેલું છે. તમે જુઓ આ લોકો ચિઠ્ઠીમાં આ રીતે માનતા લખીને મૂકે છે. એમાં એમનું નામ ક્યાં ક્યાં આવેલા છે તે પત્ર પણ લખે છે. એની અંદર આ બધું એની જે માનતા હોય છે વીસ એ આની અંદર લખી મૂકે છે. ચિઠ્ઠી માનતા जय गोलू देवता. गोलू देवता के भाई है दाना गोलू. वैष्णो देवी જેમ અહીંયા देवी માતાનું माता નામ का मंदिर है. લક્ષ્મી કાલી અને સરસ્વતી માતા. वैष्णो देवी का रूप है. આ એનો ઇતિહાસ છે. मेन रोड चल गाड़ी आगे मॉल रोड. कुशवानी की ओर अल्मोड़ा से कुशवानी. करीब 80 किलोमीटर है डिस्टेंस. 2 घंटा लगता है. जगह बहुत बढ़िया है. नेचुरल ब्यूटी है. कटारमल सूर्य माता मंदिर. ये भी अल्मोड़ा में है. प्रवेश द्वार सूर्य मंदिर कतारमल. कटारमल सूर्य मंदिर बहुत पुराना मंदिर है. ये भी साल में एक दफ़ा सूर्य का किरण भगवान पर गिरता है. ऐसा यह मंदिर एक बना हुआ है. तो हॉल में से सूर्य का किरण भगवान पर जाता है. कतारमल सूर्य मंदिर ये भी जागेश्वर जैसा ही मंदिर है. कतारमल कोणार्क मंदिर के बाद ये दूसरा सूर्य मंदिर है इंडिया में. ये भी अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट में ही है. રાજા કતારમલે આ મંદિરની સ્થાપના કરેલી. એમના નામ પર
આ મંદિર સૂર્ય મંદિર કટારમઠ સૂર્ય મંદિરથી ઓળખાય છે. એક મિનિટ. અચ્છા, આ જે નાનું મંદિર દેખાય છે એમાં એક વચ્ચે હોલ છે. આપ ये જોઈ हॉल શકશો है मंदिर के अंदर. ત્યાંથી સૂર્યના જે કિરણો છે એ ભગવાન ઉપર અહીંથી यहाँ से સીધા सूर्य મંદિરમાં का જાય किरण અને भगवान को ભગવાનની दिखता है. પર છે. આ એક મહત્વ છે આ મંદિરનું. એટલા માટે આ સૂર્ય મંદિરનું એક મહત્વ છે. આ એરિયામાં જો આ બધા ઠેર છે તમને આવો આ બાજુ असंख्य આ मंदिर બધા है નાના ऐसे. નાના ઘણા મંદિરો જોવા મળશે. कतारमल सूर्य मंदिर एक दफा देखने लायक है. રાજા કટારમલે બનાવેલો છે મંदिर. ये सूर्य किरण ये पहले सबसे एक रात्रि का बना हुआ है. अच्छा, एक ही रात्रि में बना है. ओह, एक छोटी बाई मंदिर है कचूरी राजा कौन सा राजा? कचूरी राजा कटोरी. हाँ, सूर्यवंशी अच्छा. कटार में राजा थे. हाँ हाँ ये फर्स्ट किरण इस होल है सामने. हाँ, ये हॉल देखा मंदिर में. साल में 2 बार यहाँ से फर्स्ट किरण सूर्य भगवान को होते हैं. अच्छा, सो 2 दफा. 2 दफे 22 फरवरी 22 अच्छा, साल में 2 दफा होता है और सूर्य किरण. सूर्य भगवान आता है बैठे पूजा यहाँ पर सूर्य भगवान ही है. अच्छा. और और श्री राम के साथ से सूर्य कुंड भी है आगे. हाँ, सूर्य कुंड कहाँ नीचे? आगे और अच्छा. मुख्य पानी झरने से गिरता है. अच्छा, नीचे है. वो सामने पेड़. ऊपर है. नहीं सामने वो पेड़ के पास. अच्छा अच्छा. हाँ हाँ, ठीक ठीक. कुंड है. बस वो भी मंदिर के साथ का ही. ओके ओके. आपका शुभ नाम? सुंदर सिंह. सुंदर सिंह. आप यहाँ के ही हो? हाँ जी कटार में गए. अच्छा. वो सामने अल्मोड़ा है. मुड़ा है वो हलबाग है ये आटी भी है ये विवेकानंद है सामने. ये क्या है? पंतनगर बीच रिसोर्ट. अच्छा, पंतनगर. बीच जो आपके है हाँ, ये होगा बीच जैसे होता है ये विवेकानंद. बीज क्या होता है? गेहूँ धान उसका. अच्छा, वो सामने. और यहीं रिसोर्ट होता है. ओके. अच्छा, रिसर्च है वो. एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है. ये सूरत इंडिया स्विट्जरलैंड को टक्कर मार ऐसा है इंडिया. बीच में बागेश्वर है. यहाँ से रुद्रप्रयाग का एक रास्ता है चारधाम जाने के लिए. बागेश्वर तो कुचिना यही रास्ते पे जाता है. तो कुचिना यही रास्ते पे. अच्छा, यहाँ से 4 धाम होता है. यहाँ से कहाँ हरिद्वार जाना पड़ता है कि इसका कोई रास्ता है? रुद्रप्रयाग वहाँ निकलता है. बैजनाथ પાણી લવાલપ છે ગોમતી નદીમાં. बैजनाथ. મંદિર તરફનો રસ્તો છે. બોટિંગમાં સગવડ થયેલી છે નવી. बागेश्वर. પેલા મંદિરો છે. बैजनाथ. बैजनाथ टेम्पल. बागेश्वर बागेश्वर बैजनाथ मंदिर समूह. बागेश्वर बैजनाथ. આ ગોમતી નદી છે. પાણી ફૂલ છે અહીંયા. બોટિંગની પણ વ્યવસ્થા થઈ છે. સરસ આયોજન કરેલું છે. અત્યારે રાત્રે કંઈ પ્રોગ્રામ છે અહીંયા એટલે લાઇટિંગની વ્યવસ્થા થઈ રહી છે. અહીંયા કારના પર ચપ્પલ. આ મંદિર સમૂહ છે જે પ્રમાણે ઉપર સૂર્ય મંદિરમાં અમે ગયેલા એવા જ અહીંયા આગળ પણ મૂર્તિઓ હટાવીને મુખ્ય મંદિરોમાં મૂકેલું છે. बैजनाथ મંદિર છે. આ મંદિર સમૂહ. આ મંદિર સમૂહના મુખ્ય મંદિર છે. मेन मंदिर है बैजनाथ. આ ભગવાન ભોલેનાથ શંકરનું
મુખ્ય મંદિર છે, જેમાં શંકર ભગવાન પાર્વતીની મૂર્તિ છે. વૈદ્યનાથ મંદિર, બાગેશ્વર. બહુ પુરાતન, હજારો સાલ પુરાના મંદિરો છે. કહેવાય છે કે જ્યાં શંકર ભગવાન કનખલથી નીકળેલા ત્યારે એક દિવસ અહીંયા આરામ કરેલો અને એક દિવસમાં આ મંદિર બનેલું છે. एक दिन में बना हुआ मंदिर है. शंकर भगवान जब कंकाल से निकले थे तब यहाँ एक दिन आराम किया था. जय भोले, जय वैद्यनाथ महादेव. बागेश्वर वैद्यनाथ मंदिर का ही संकुल है. अलग अलग जातना फ्रूट्स दर्शानी अफू झाड़ है. वो भी अच्छे कलर के बढ़िया है. तेज पत्ता, बे लीफ. આ ઉપર ઝાડ દેખાય ને તે તેજ પત્તા છે. तेज पत्ता का भी જે આપણે बना हुआ है. દાળ શાકમાં ને એમાં નાખીએ છીએ તે છે. આ જે દેખાય છે તે ચા છે. चाय पत्ती है, उसको सुखा के फिर चाय बनाते हैं. अलग अलग टाइप की चाय होती है. एक दलान पे बनाया हुआ है चाय. गांधी आश्रम कोसानी. ગાંધીજીના પ્રિય 3 વાંદરા. बंदर है यहाँ गांधी जी. गांधी जी यहाँ आए थे सत्याग्रह के टाइम में, નહીં અને બધું સાંભળવું નહીં. तब यहाँ रुके थे गांधी जी. यहाँ से सब पर्वतमाला दिखती है हिमालय की. यहाँ से पूरी हिमालय का दर्शन होता है. सब नंदा देवी, अन्नपूर्णा, ये सब दिखते हैं. इधर कुछ लिखा था पर वो निकाल दिया लगता है आगे इतने में कि कौन सी पर्वत की कितनी हाइट है और कहाँ पर क्या कौन सा पर्वत है वो सब ये इसमें बताया था पर ये निकाल दिया लगता है. नंदा देवी है, त्रिशूल है, वो सब पर्वत यहाँ से दिखते हैं. अभी थोड़ा आसमान खुल जाएगा तो सब दिखाई देगा. पूरी हिमालय की ये गिरिमाला है. ये सामने नंदा देवी पर्वत है. सामने नंदा देवी. सबसे ऊंची जो टोच है ना वो अन्नपूर्णा. अन्नपूर्णा. उसके बाद नंदा देवी वो दिखती है ना, वो सबसे ऊंची टोच वो अन्नपूर्णा. शक्ति आश्रम, गांधी आश्रम. અહીંયાથી હિમાલયની પર્વતમાલા ગિરિમાલાઓના દર્શન થાય છે. નંદા देवी बड़ी. हमारे लोग एक खेती करते हैं आलू की. नहीं किसने दिया वो बोलो. खेत से लेके आए हैं. इन्होंने दिया था. क्या दिया था? वो इसने दिया. किसने? आपने दिया. आपका नाम क्या है? तुलसी देवी. तुलसी देवी. और आपका? मैंने नाशपाती दिया. नहीं आपने वो तो कच्चा है. पक्का मिल जाएगा तुझे. आपका नाम क्या दीदी? दीपा देवी. दीपा. पुष्पा रहा झुकेगा नहीं. झुकेगा नहीं. कमती है वो तो ये. चलो अच्छा है, ये दे दो, इनको दे दो. नहीं ले लो. अरे ले जाओ. अरे वो बच्चे को देना.
शादी हो कोसानी विलेज नहीं ना लाइट कोसानी बारिश हो रही है अभी। लाइट भी गई भाई और बिजली कराका भड़ाका कर रही है। बिजली चमकती है, देखो आकाश में बिजली चमक रही है, बारिश हो रही है। और हमारे गुजरात में अभी 40 डिग्री तापमान है। यहाँ कोसानी में बारिश है। ये नज़ारा है कोसानी अर्ली मॉर्निंग। सुबह के 5 बजे है अभी कोसानी में और ऐसा माहौल है, बहुत ही दिल बढ़िया चाहता माहौल है है। बस यही बस जाए। खूबसूरत ये वादियाँ है, ऊंचे ऊंचे पहाड़ है और ये पहाड़ के साथ अटखेलियाँ करते ये बादल, ऊपर नील गगन में आकाश, दूर दूर हिमालय की चोटियाँ, कितना सुंदर नज़ारा। भारत जा रही है उत्तराखंडी भारत। मोनालिसा जंगल एरिया है। कोसानी से मोनालिसा जंगल एरिया। रानीखेत आटे। माचिस लगाने में जल जाएगा, पूरा आग पकड़ लेगा। ऐसा है। चिकना है नहीं अंदर से। का है हाँ। ओके ये वृक्ष पर होता है ये। उसमें काट में भी पड़ता है वाली। रानीखेत सुंदर नज़ारा है हिमालय का रानीखेत में। हिमालय दर्शन रानीखेत। हाँ जी, हाँ यहाँ कहीं खरीद होता है तो चाय पानी कर ले अगर मिलता है तो हिमालय का व्यू हो जाए। ये पूरा हिमालय दिखता है यहाँ से। BSNL की ऑफिस लगती है। हाँ, ये टावर हमारा ही है। ये है अनुभाग राजस्व स्टोर उपमंडल कौन्स। हाँ, ये हमारी ऑफिस है BSNL की। પરી જે પાર પરથી પાણી આવે છે ને रानी जी અહીંયા બંધ જેવું બાંધેલું છે ને એમાંય પાણી રોકાય છે, એને રાણી झील કહી છે। આ બધો મિલિટરી એરિયા છે, છાવણી પર છે। ટાઈગર છે, વ્હાઇટ ટાઈગર, લાયન એરિયા છે, ફોરેસ્ટ એરિયા સરસ છે। देखो नज़ारा देखो कुदरत का। रानीखेत नैनीताल जाते इतना सुहाना माहौल है। बहुत बढ़िया। इसको बोलते हैं इंडिया। बीच रोड में फूलों से सजी होटल है।
कैसी धाम की ओर जाते हैं रानीखेत से। ईश्वर ड्यूटी रानीखेत के नजदीक ही है, बढ़िया सीन है। और फूलों की सजावट से रानीखेत से नीमकरोली जाके रास्ते में एक होटल आती है, काफ़ी अच्छी है, सुंदर लोकेशन है। यहाँ से सनसेट का पॉइंट, हाँ सनसेट અહીંથી જોવાય છે, સૂર્યાસ્ત पॉइंट है। जय बाबा नीमकरोली। कौन हो दिखाओ घोड़े को पता नीमकरोली बाबा हनुमान जी के परम भक्त थे। यहाँ इनके फॉरेनर्स फॉलोअर्स भी हैं, उनके ऊपर श्रद्धा है, उनका काम हो जाता है। काफ़ी नामना है नीमकरोली बाबा की। ब्रिज है, इसके नीचे नदी बह रही है। नीमकरोली महाराज। मंदिर परिसर में अलाउड नहीं है कैमरा, इसके लिए हम यहाँ से उसको बंद करते हैं। इसके आगे फोटो नहीं खींच सकते। जय श्री राम बाबा नीमकरोली। टालों में टाल नैनीताल, नैनीताल, बाकी नीमतराई। उसका आकार आम के जैसा है, काफ़ी बड़ा एरिया है। ये मॉल मस्त रोड है, जगह है नैनीताल। नैनीताल का मॉल रोड। शाम का टाइम ही अच्छा होता है घूमने के लिए, बोटिंग में। अच्छा, वो नैना देवी टेम्पल है। माता जी की एक कौन आँख सा यहाँ पर है? गिरी थी, वो ठीक जब विष्णु भगवान ने सुदर्शन से माता जी की देखा, चयन किया था। ये शक्तिपीठ है। वैकेशन में देखिए कितनी पब्लिक है, बोटिंग। अच्छा होता है। तो सामने नैना देवी मंदिर दिखता है, भगवा कलर का जो है ना कलर, उसके बाजू में गुरुद्वारा है। ओम नमः शिवाय, शिव शंभो। फुल पब्लिक से वैकेशन पीरियड। लेडीज हार्ट शामल तरी आइटम वाला लेडीज नहीं। आ जा रहे हैं। स्वागतम आदि समाज। बोटिंग नैनीताल।
माहौल है, ऊपर बादल बने हुए हैं बारिश के लिए। अभी थोड़ी देर पहले बारिश गिर गया। हम बैठे हैं छाता लेके, बारिश आएगी छाता खुल जाएगा। ये माहौल है, देखो पहाड़ पर अब बધી હોટલો જ છે ચારે બાજુ। इसका आकार आम जैसा है, કેરી જેવો આકાર છે, કેરી કાલનો ઉપરથી વ્યૂ લો તેનો આકાર કેરી જેવો દેખાય છે। काफी ठंडी हवा है। બસ વરસાદના છાંટા ધીરે ધીરે પડી રહ્યા છે એટલે बारिश હવે शुरू हो गई है। મોબાઈલ બંધ કરીએ છીએ। ચાલો પાછળ વરસાદ શરૂ થઈ ગયો છે એટલે છત્રી ખોલી નાખી છે। મસ્ત વાતાવરણમાં બોટિંગ થઈ રહ્યું છે, એનો અનુભવ જ કંઈક ઓર છે। આ હાફ લેકના 320 રૂપિયા લે છે 2 જણના। પેડલ બોટ છે, એનો એન્ડ આવી ગયો। એક્ટિવિટી થવાનું एक राउंड का 320 रुपये देते हैं बोटिंग चार्ज। पाँच महीना वातावरण सुहाना, बारिश चल रही है, છત્રી કરીશું छाता खुला हुआ है, દેખાશે। बादल गरज रहे हैं। नैनीताल में नौका विहार